خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا دل جھوم اٹھا بہت عمدہ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ ہے جس کا پروردگار بغیر حساب کے جنت میں جسے ڈالے گا. نبی کی بارگاہ میں آیا, باہر سے دستک دیا, نبی کی کان میں آواز گئی. نبی نے صحابی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جس کو بغیر حساب کے پروردگار جنت میں ڈالے. اور دونوں صحابی کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر جب گئے دروازہ کھولا, حیران ہو گیا. آنے والا کوئی اچھی شکل والا نہیں تھا. ان کی شکل سے, ان کی شکل و شباہت سے خوبصورتی نہیں ٹپک رہی تھی. لگ یہ رہا تھا کہ کوئی دیہات سے آنے والا, دیہات سے چل کے آیا ہے. الجھے ہوئے بال ہیں, اس کے بدن پہ گرد و غبار ہیں. آیا, نبی کو سلام کیا اور نبی کو سلام کر کے بیٹھا. کچھ دیر نبی سے بات ہوئی, چلا گیا. وہ دونوں صحابی اٹھ کے چلے گئے. دوسرا دن آیا, وہ دونوں صحابی پھر آئے نبی کی بارگاہ میں. ہر دن کی طرح آ کر دو طرف بیٹھ گئے. نبی سے بات ہوئی, اچانک پھر آواز آئی. اچانک دوسرے دن پھر دروازے سے آواز آئی, دستک آئی. نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. دونوں صحابی کھڑے ہوئے, پھر گئے, دروازہ کھولا, دیکھا وہی انسان جو کل آیا تھا آج بھی آیا ہے. وہی الجھے بال ہیں, وہی بدن پہ گرد و غبار ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں. دروازہ کھولا گیا, نبی کو سلام کیا, بیٹھ گیا. نبی سے تھوڑی دیر بات چیت ہوئی, اٹھ کے چلا گیا. تیسرا دن پھر ہوا, وہ دونوں صحابی پھر آئے. نبی کی بارگاہ میں پھر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہے, حدیث پر چرچا ہو رہا ہے. کچھ دیر کلام ہوا, پھر آواز آئی. نبی نے کہا جاؤ جلدی کرو دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ دونوں صحابی گئے, دروازہ کھولا. کوئی تیسرا دوسرا نہیں, وہی نوجوان جو کل بھی آیا تھا, پرسوں بھی آیا تھا, آج بھی وہی کھڑا تھا. ان کے الجھے بال تھے, بدن میں پھٹا پرانا کپڑا تھا, گرد و غبار تھے. دونوں صحابی اب سوچ رہے ہیں معاملہ کیا ہے. یہ آنے والا دیہاتی نہ شکل کا اچھا ہے, نہ صورت کا اچھا ہے, نہ تو خوبصورت ہے, نہ تو اس کے کپڑے اچھے ہیں, نہ تو ان کا کلام اچھا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یہ آنے والا وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. نبی سے بات کر کے جب جانے لگا, یہ دونوں صحابی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. دونوں صحابی اس کے پیچھے پیچھے کافی دور تک گئے. جب کافی دور گئے, وہ نوجوان جب پلٹ کے دیکھا, کہا آپ دونوں صحابی کہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ؟ دونوں صحابی نے عرض کیا میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 3 دن سے آپ آ رہے ہیں, آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ آپ کی اچھائی کیا ہے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا نہیں آپ کو بتانا ہوگا. آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے جس پر نبی راضی ہے اور میرا خدا راضی ہو گیا ہے؟ نوجوان نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا 3 دن آپ آئے, نبی نے مجھ سے کہا جو ہی دروازے میں دستک آپ نے دی, نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. میں پوچھنا یہ چاہوں گا, آپ کی شکل اچھی نہیں ہے, آپ کی صورت اچھی نہیں ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے میرے نبی راضی ہو گئے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا بھائی میری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہے, بس 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا ہوں,
मेरे पास माल नहीं है कि मैं सदका या ज़कात अदा करूं, मेरे पास कोई अच्छाई चीज नहीं है। शायद ये तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। हाँ, एक बात जरूर है। कहा क्या? कहा आज से कुछ दिन पहले मैं सख्त बीमार हो गया था। मैं ऐसा बीमार हो गया था कि लोगों ने मेरे हयात की आस तो छोड़ दी थी। लोगों की आवाज से, कानों से आवाज, लोगों की जबान से आवाज आ रही थी, अब ये नौजवान नहीं बचेगा, इसकी सेहत खराब हो रही है, इसकी उम्र कम हो गई है, इसको कौन सा मर्ज लाक हो गया है, अब शायद ये नहीं बचेगा। लोगों ने जब ये वाविला मचाया, मेरे घर वाले एक दिन मेरे पास आए, मुझसे कहे तैयार हो जाओ। मैंने कहा तैयारी की क्या वजह है? उसने कहा चलो तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊं। दोस्तों, मैंने बबांगे दोहल कहा था रहने दो, लोगों ने आस छोड़ दी है, छोड़ने दो, लेकिन मैंने आस नहीं तोड़ी है। मुझको मेरे खुदा पर भरोसा है। रहने दो सारी दवाएं, रहने दो इलाजो मुआलजा, मैं अपने खुदा के जिम्मे अपने आप को हवाला करता हूँ। अर्ज करता हुए मौला, मुझे अगर मुझे अच्छा ही से साथ इस दुनिया में रखना है तो रख मौला, वरना मुझको उठा ले। ये कहना ही था कि धीरे धीरे मेरी बीमारी खत्म होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए हैं। अब न तो मुझको बुखार आ रहा है, न तो कोई छोटी बीमारी मेरे करीब आ रही है। यही वजह है कि मैं रोजाना जंगल से आकर नबी से मुलाकात करता हूँ और मुलाकात करके फिर अपने काम में चला जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी का मामूल है। दोस्तों, हदीस पेश करके मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आज लोग मायूस हो जाते हैं अगर किसी वजह का किसी तरह का मर्ज लायक हो जाए, हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, हम नाराज होकर हम वावेला मचाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि मेरे परवरदिगार ने मुझको नाशुक्रा नहीं बल्कि शुक्रगुजार बंदा बनाया है। हमें ये चाहिए कि हम हर मौके पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौला हमसे शुक्र अदा करवाना चाहता है। हमारे ऊपर अगर किसी तरह के हालात आते हैं, हमें ये महसूस करना चाहिए कि आजमाइश की घड़ी है। हमने खुदा की बारगाह से जब दुनिया में कदम रखा था, परवरदिगार से मेरा वादा था, ए मेरे परवरदिगार, मैं जन्नत जाऊंगा, तेरी इबादत करूंगा। हम तेरी इबादत ही के लिए इस दुनिया में आ रहे हैं। मौला, हम तेरी इबादत करेंगे। मैं पैगाम ये देना चाहूंगा कि हम और आप जरा जिंदगी का मुहासरा करें। हम जरा सोचें कि हमने अपने खुदा से जो वादा किया था, क्या वो वादा हम पूरा कर रहे हैं? हमको पैदा किस लिए किया गया था? दुनिया में इंसान पैदा इसलिए किए गए थे कि वो अल्लाह को एक माने, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएं, अल्लाह की इबादत करें हजरात। लेकिन मामला क्या है, आज हम खाने कमाने में लग गए हैं। खाना कमाना भी जरूरी है, जिस्म में अंदर ताकत भी जरूरी है और इसके लिए ग़िज़ा की तलाश भी जरूरी है। लेकिन क्या तलाश हम हक रास्ते से करें या नाहक रास्ते से करें? हमें ये चाहिए कि हम रिस्क की तलाश करें, लेकिन हमारी सोच ये हो कि हम वो रिस्क तलाश करें जिस पर खुदा राजी, मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। हजरात, देखा ये जाता है हम कहीं भी अपने रिस्क को तलाश करते हैं, लेकिन रिस्क तलाश करने में हम कितनी गलतियां करते हैं। अगर हम उस गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे, जरूर याद रखिए अल्लाह की रहमत हमारे घर में होगी, हम परेशानियों से बचते हुए नजर आएंगे। हमें ये चाहिए कि हम खुदा की बारगाह में सर झुकाएं। खुदा ने अगर मुझको माल दिया है, खुदा की बारगाह में हम ज़कात अदा करें, सदका अदा करें, सदका फित्र अदा करें। दोस्तों, हमें ये चाहिए कि मेरे सामने अगर कोई साइल आए, जैसा कि मौलाना शकील ने अभी आपके सामने बड़ी तफसील के साथ और तफसील के साथ आपके सामने बयान किया, हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है। लेकिन इंसान इतना अजीब है, ये इंसान कितना अजीब है। खुदा की बारगाह से आया हुआ माल हम अपना कह रहे हैं, वरना सही बात तो ये है कि हमारे पास जो कुछ है ये हमारा कुछ नहीं है, ये तो उसी मौला का है, यही वही परवरदिगार का है। परवरदिगार का माल है, हम उसके रखवाले हैं। परवरदिगार जब चाहे हमसे जान की भी कुर्बानी ले सकता है, परवरदिगार जब चाहे हमसे माल की भी कुर्बानी ले सकता है। और वो बंदा जरूर कामयाब होता है जो अल्लाह की राजी पे रजा हो जाए, अल्लाह की राजी पे रजा हो जाए। तुम्हारी बारगाह में, तुम्हारे घर में आकर अगर दस्तक देने वाला एक फकीर, एक साइल आपके बारगाह में आकर सवाल करता है तो उसे झिड़किए मत,
बल्कि चाहिए ये कि आप अपने अपने जायज कमाई में से कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। हो सकता है आने वाला किस मिजाज को लेकर आया है, कौन सी शक्ल लेकर आया है, हो सकता है कि खुदा की बारगाह से आपकी बारगाह में आजमाइश की घड़ी है। हजरात आइए चलते चलते एक वाकया मैं आपको बताऊं। आज से बहुत पहले मैं उर्दू डाइजेस्ट में एक वाकया पढ़ा था तो मुझको बड़ा महसूस हुआ था। वो वाकया ये था, एक इंसान था, जब उसका इंतकाल होता है उसके घर में उसका एक बेटा था। उसके बेटे ने सोचा कि हमें तालीम हासिल करनी है, लेकिन होता क्या है, बाप का साया सर से उड़ गया। गरीबी का दौर था। आज के दौर में कौन गरीब है? कल की गरीबी को जरा सा महसूस करें। कल के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे हैं, हमारे आबा व अजदाद अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारे हैं, जरा उसको हम महसूस करें। कल के दौर में तमाम परेशानियों के साथ जिंदगी गुजारते थे वो नौजवान जिसने तालीम हासिल करना चाहा। दोस्तों जरा देखते चलें, वो तालीम हासिल करता तो करता कैसे? बाप का साया सर से उड़ गया। माँ भी बेचारी गरीब थी, कहाँ से कमा कर लाती तो उसको खिलाकर उसकी परवरिश करती। वो बच्चा जब होशमंद हुआ, उसने उस जमाने में एक ठेले की शक्ल में एक सवारी लिया और सवारी में कुछ सामान लाकर घर घर गाँव गाँव वो उसको फरोख्त करता था। और जब शाम का वक्त होता था, शाम के वक्त में कल के दौर में अगर कहीं उसको लाइट का थोड़ा सा भी बंदोबस्त होता था, उस लाइट के सहारे से वो पढ़ता था। सारा दिन मजदूरी करता था, उससे जो पैसे कमाता था खुद भी खाता था, अपनी माँ की भी परवरिश करता था माँ की भी परवरिश करता था और तालीम भी हासिल करता था। एक दिन का वाकया है कि चिलचिलाती हुई धूप में ठेला लेकर जा रहा है, अचानक प्यास लगते ही एक गली पे जाके ठेला रोका, आवाज दिया, अंदर से एक औरत आई। कोई सामान था, सामान की कीमत पूछा। उसने कहा सामान बात को बहन, मैं गरीब इंसान हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे प्यास की शिद्दत है, भूख भी लगी है, लेकिन तुझसे मैं गिलास पानी का सवाल करता हूँ, क्या मुझको एक गिलास पानी का मिलेगा? औरत थी, औरत का दिल नरम होता है। उसने कहा भाई रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। वो अंदर गई और अंदर जाने के बाद पानी नहीं बल्कि गिलास में दूध लेकर आई और उस नौजवान के हाथ में देकर कहा भाई ये लो पियो। उसने कहा मैंने पानी तलब किया था। औरत ने सोचा और उसने कहा मैं तुम्हारी शक्ल को देख सकता हूँ, तुम्हें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, दूध पियोगे तुम्हारी भूख भी मिटेगी, प्यास भी बुझेगी। नौजवान ने उस एक गिलास दूध का लिया है, पिया है। याद रखिए जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, हो सकता है जबान से आपका शुक्रिया अदा करे न करे, मगर याद रखिए जब आप कोई नेक काम कर रहे हैं, खुद ब खुद उसके जबान से निकले या न निकले, अगर उसके अंदर सच्चाई है, खुलूस है, तो रब की बारगाह में कबूल होता है और हो सकता है वही आपके लिए बाइस से नजात हो जाए। वो नौजवान दूध पीकर चला और एक दौर चल रहा। कई साल के बाद इस कदर तालीम हासिल किया कि उस इलाके का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। उस इलाके का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। और जब डॉक्टर इतना बड़ा बना, पैसे आने लगे, तो उसने एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोला। जिंदगी ने करवट लिया। ये होता है, आज तुम्हारे पास पैसा है, हो सकता है कल तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाए, और आज जिसके हाथ में कटोरा है हो सकता है कल वो शहंशाह हो जाए। जिंदगी करवट लेती है। एक जमाने के बाद वो लड़की जब बुढ़ापे के मंजिल पे पहुंची, अचानक उसको एक बीमारी आ गई, और ऐसी बीमारी कि डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा इलाज सिवाय उस हॉस्पिटल के कहीं नहीं है। उस औरत को लिया, बेहोशी की आलम में वो औरत गई और जाने के बाद एडमिट हुई, दाखिला हुआ, इलाज चलता रहा। इलाज हो जाने के बाद
दफ्तर से उस औरत के पास एक पर्ची आती है और उस पर्ची में सारा खर्च, उस खर्च को जब देखती है वो दोबारा बेहोश हो जाती है। उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो चुका सके। जब उसको होश आया, होश आते ही उस हॉस्पिटल के नौकर ने उससे कहा, बहन घबराने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा तुम बेहोश क्यों हुए थे? कहा भाई मैं सेहत तो पा गई हूँ, लेकिन लगता है दोबारा मेरी बीमारी मेरे पास आएगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं जो अपने इलाज पे खर्च हुए हैं वो तुम्हें दे सकूं। उसने कहा तुम्हें इलाज के पैसे देने की जरूरत नहीं, ये नीचे देखो नोट लिखा हुआ है कि इस पेशेंट का पैसा न लिया जाए, इसका पैसा पेड हो गया है। उस औरत ने कहा किसने पेड किया? किसने पेड किया? उस नौकर ने कहा रुक जाओ, मैं उस मेहरबान से मिलाता हूँ। नौजवान भागता हुआ गया और डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर सामने आए, आने के बाद औरत और उस नौजवान डॉक्टर से जब मुलाकात हुई, नौजवान डॉक्टर रोने लगे। कहा बहन तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया। मैं वही नौजवान हूँ जो गरीबी में ठेला लेकर तुम्हारे दरवाजे से गुजर रहा था। पानी का एक गिलास मांगा था, तुमने दूध दिया था। औरत ने कहा मैं पहचान गई। कहा तुम्हारे उस एक गिलास दूध ने मुझको इस काबिल बना दिया कि मैं डॉक्टर बन गया, और उसका हक मैं तो अदा नहीं कर सकता। बावजूद मैं तेरे खर्च को अपने इस पूरे हॉस्पिटल के तरफ से तुम्हारे खर्च को अदा करने के बाद तुमसे आज भी हाथ जोड़कर मैं माफी की तलाशी कर रही हूँ। बहन मुझको माफ कर देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस दूध की कीमत मुझको मैदान महशर में अदा करना पड़े। रात वाकया बताने के बाद आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके दरवाजे पे कोई साइल आए तो आप उसे मत छिड़किए, आपसे जहां तक हो उसको दीजिए। हजरात मैं आपको बताऊं यही एक मसला सुनिए, यहीं पे एक मसला ये सुनिए। मसले की बात ये है कि तुम अगर पैसे वाले हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास अगर दौलत है और फल के मौसम में अगर तुम कोई फल खरीद के लाते हो, उलमा ये बयान करते हैं कि 1 किलो फल अगर अपने घर के लिए लाते हो तो 250 ग्राम फल अपने मोहल्ले में जो आपके गरीब लोग हैं उनके लिए भी लाओ। उलमा ये बताते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारा जेब अलाउ नहीं करता है, तो कहा यह गया है कि उस फल को तुम काले पॉलिथीन में ले आओ ताकि गरीब की नजर न पड़ जाए। रूह तुम्हारे पास भी है, रूह उनके पास भी है। यहां तक आया है एहतियात कि तुम अगर फल लाते हो जिसमें छिलका है, अगर तुम पड़ोस वाले को दे रहे हो तो ठीक, वरना तुम फल लाकर घर के अंदर साफ करके खाओ और उस फल को तुम फल के छिलका को जमीन में दफन कर दो। ऐसा न हो कि किसी गरीब की रूह तरस जाए और इसी वजह से तेरी आकिबत बिगड़ जाए। ये एहतियात के पहले हजरात मैं अर्ज कर रहा था बीमारी के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला न जाने कौन सा बहाना पैदा करता है। उसी डाइजेस्ट में एक वाकया लिखा था किसी गैर मुल्क के बारे में। एक नौजवान को बीमारी लाई। बीमारी भी कैसी लगी? हम सबों के जबान में थूक है, थूक जिसे हम फेंकते हैं। थूक अगर हम आपके सामने थूकें और थूक का एक कतरा आप पर गिर जाए तो आप घिन महसूस करते हैं। लेकिन वही थूक आपके लिए अल्लाह ने कितना बड़ा नियामत आपको दिया है। वो बीमार इसलिए था, उसका पेट फूलता था। जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया, चेकअप किया तो ये कहा कि तुम्हारे मुंह में थूक पैदा नहीं होता है और थूक नहीं होने की वजह से तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है, अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। आप देखें मेरे पास जो थूक है परवरदिगार ने जो दिया है वो हमारे लिए कितना अहम है।
तो की कोई अहमियत नहीं, लेकिन अहमियत इतनी कि उसी की वजह से वो बीमार हुआ और लाइलाज मर्ज हो गया। हज़रात, महसूस करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह की दी हुई सारी चीजें मेरे लिए नियामत है, हम महसूस नहीं कर पाते। हमारे जिस्म के अंदर जो नाखून है जिसे हम काट के गिराते हैं, ये भी अहमियत है। आपके उस हिस्से में जहां दूसरी चीज न जाए, आपके हाथ की उंगली जाए, वहां खुजलाहट पैदा हो, और अगर आपके पास नाखून नहीं है तो खुजला कर सुकून नहीं महसूस कर सकते आप। मालूम ये हुआ कि नाखून जिसकी कोई अहमियत नहीं, वो भी अल्लाह की नियामत है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की रजा पर हमें राजी होना चाहिए। हज़रात, एक आदमी को मैंने देखा, आप भी देखते होंगे, चाय की दुकान में गए, चाय की दुकान मैंने चाय मांगा, करीब में थे, उसने भी चाय मांगा। उसने कहा रुक जाओ, दुकानदार से कहा रुक जाओ, कहा क्या हुआ, कहा बगैर चीनी के देना, बगैर चीनी के देना। मैंने कहा हुआ क्या भाई, कहा मुझको शुगर है। शुगर हो तो क्या हुआ, कहा शुगर है, मैं चीनी से परहेज करता हूँ। क्यों भाई, कहा डॉक्टर ने कहा। अब जरा महसूस ये करें, वो चीनी जिससे वो बच रहा है, चीनी से बच रहा है, क्यों, डॉक्टर ने कह दिया। जान की परवाह, अगर वो चीनी खाएंगे तो मेरा शुगर बढ़ेगा और हमें मौत हो सकती है। चीनी जायज है या नाजायज, मैं पूछना चाहूंगा। हर आदमी कहेंगे जायज है। चीनी खाना हलाल है या हराम, हलाल है कि हराम है, हलाल है, चीनी हलाल है। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें शुगर है, तुम्हें चीनी से बचना है, तो अब डॉक्टर के कहने से हलाल चीज से हम बच रहे हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए सूद हराम है, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए चोरी करके माल कमाना हराम है, हराम अल्लाह ने कहा। डॉक्टर के कहने से हम हलाल चीज से परहेज कर रहे हैं, और खुदा के कहने से हम हराम चीज से परहेज नहीं कर रहे हैं। महसूस करें जरा, महसूस करें। बहुत कीमती बात। डॉक्टर एक हम जैसा इंसान, उसने कह दिया चीनी से बचो, भात मत खाओ, आलू मत खाओ, हम उससे बच रहे हैं। क्यों, इसलिए कि डॉक्टर ने मना कर दिया मेरी जान जा सकती है, और वो चीज जो हलाल नहीं हराम है, खुदा और रसूल ने मना किया। तुम डॉक्टर के कहे हुए चीज को खाओगे, जान जाएगी, और खुदा ने जो हराम किया कहा है उसको खाओगे, अगर उसको खाओगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। लेकिन कोई परवाह नहीं, खुदा कहे तो कहते रहे, हम हराम खा खा कर हराम खोर बनते जा रहे हैं, और डॉक्टर ने जो हलाल खाने कहा है, हम उससे बच बच के अपने जिस्म को और खराब किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, जहां जिस्म को बचाने के लिए हलाल चीज को डॉक्टर के कहने से रुक रहे हो, वही अल्लाह के कहने से हराम चीज को भी इस्तेमाल करने से बचाओ। कसम खुदा की, तुम्हारी जान भी अच्छी रहेगी, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तल्ख बात है, तल्ख हकीकत है। हम अगर इस पर अमल करेंगे, यकीनन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। हज़रात, वो इंसान, उसके जबान पे थूक नहीं बनता था, डॉक्टरों के पास जाके इलाज कराया, तमाम डॉक्टर ने कहा पूरे मुल्क में तुम्हारा इलाज नहीं है। पैसा वाला था, माल वाला था, उसने कहा चलो भाई, अब दूसरे मुल्क में जा रहे, मेरे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहते हैं, चलो हैदराबाद, चलो बम्बई, पैसा ज्यादा है तो चलो अमेरिका। चला गया अमेरिका में जाके बहुत बड़े हॉस्पिटल का फीस जमा किया, और फीस जमा करने के बाद जब डॉक्टरों ने देखा, दूसरे हमारे यहाँ तो एक ही डॉक्टर होता है, ये कोरोना के बाद तो आजकल का डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता है, खाली पूछता है। उस अमेरिका वगैरह में 2-4 डॉक्टरों की टीम होती है, 2-4 डॉक्टर होते हैं, सब मशवरा करके तब इलाज होता है, इसलिए अच्छा इलाज होता है। तमाम डॉक्टर की टीम है, चेकअप करने के बाद डॉक्टर, वहां के डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे मुल्क के डॉक्टर ने जो कहा तुम्हारा इलाज नहीं है, सच्ची बात यही है, हमारे तफ्तीश और हमारे जांच में भी यही आया है, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, जाओ घर जाओ, जो तुम्हें खाने की तबीयत को जाके खा लेना। ये था गोश्त की बहुत तलब होती थी इसको। जब आया अपने मुल्क, सोचा कि बचेंगे तो नहीं, यहाँ के डॉक्टरों ने भी, वहां के डॉक्टरों ने कहा चलो गोश्त खाया जाए। दोस्तों, और से सुनना,
चला गया वो कसाई की दुकान में जहां पे कसाई गोश्त काटता है। आप देखिएगा, कसाई जब गोश्त काटता है तो गोश्त के ऊपर जो झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली को साफ करके खराब गोश्त को भी अच्छा कर देता है। कला होता है उसके पास, काट काट के फेंकता है। आप ये समझो कि 100 ग्राम फेंका वो तो अच्छे माल में बिक रहा है। नौजवान गोश्त खरीदने गया और जो ही गोश्त खरीदने गया, देखा करीब में एक औरत बैठी है, उसके गोद में एक बच्चा है। कसाई गोश्त से झिल्ली निकाल निकाल कर फेंक रहा है और वो औरत अपने बर्तन में लिए जा रही है। काफी देर तक देखता रहा ये रईस आजम, ये वक्त का बादशाह। काफी देर तक देखा और देखने के बाद कहा, बहन क्या मामला है? कसाई जिसे फेंकता है तुम उसे समेट रही हो। उसने कहा, क्या करें, मजबूरी है, शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं खुद भी हूँ, मेरा बच्चा भी है, कमाने वाला कोई नहीं है, रोजाना यहीं पे बैठ जाता हूँ, कसाई झिल्ली फेंकता है, मैं समेट कर घर ले जाती हूँ, इसी को पका कर मैं भी खाती हूँ, मेरा बेटा भी खाता है। उस नौजवान ने कहा, ओ कसाई सुनो, जहाँ 2 किलो गोश्त मुझको दे रहे हो, 2 किलो गोश्त मेरी बहन को भी दो। और यही नहीं, जब जब मेरी बहन आए, अब झिल्ली नहीं चुनेगी, अब इसे तुम गोश्त दिए जाना, पैसे मैं अदा करूंगा। हजरात, 1 हफ्ता तक यही मामूल चला। ये नौजवान डेली गोश्त ला रहा है, खा रहा है, खूब खा रहा है, बचना नहीं है, खा रहा है। खाते खाते कुछ दिनों के बाद यह खुद एहसास कर रहा है। आपको बुखार हो जाए और आपको डॉक्टर दवा दे, 2 दिन 4 दिन के बाद आपको एहसास होगा बीमारी कम हो रही है। 2-4 दिन के बाद देखा मेरी बीमारी कम हो रही है, तो चला गया डॉक्टर के पास। कहाँ? 5-7 दिन उस औरत को गोश्त देता रहा, खुद भी खाता रहा। जब अच्छा लगने लगा, टिकट लिया, फिर चला गया अमेरिका, उसी हॉस्पिटल में। और जाने के बाद दोबारा फीस देकर जब जांच किया, डॉक्टरों की टीम की नजर जब पड़ी, काफी देर तक कभी उसके कागज को देख रहे हैं डॉक्टर, कभी उसकी शक्ल को देख रहे हैं। नौजवान ने कहा, क्या देख रहे हो? कहा, देख ये रहा हूं कि मेरी पूरी टीम ने आपको कह दिया था आप नहीं बचोगे, 15 दिन तक आपको मैंने टाइम दिया था, आज 15 नहीं 25 रोज हो गए हैं। मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में कौन ऐसा डॉक्टर है जिसने तुम्हारा इलाज किया है। उस नौजवान ने कहा, सुनो, दुनिया के डॉक्टरों की क्या ताकत, मैंने दुनिया के डॉक्टरों का इलाज नहीं किया है, बल्कि हम तो अपने खुदा की बारगाह में जुस्तगू लगाकर अपनी खुदा की बारगाह से मैंने इलाज शुरू कर दिया है। उलमा बयान फरमाते हैं, तुम खुदा की राह में सदका करो, सदका भला को टालता है। मैंने सदका करना शुरू किया, मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम करना शुरू किया और मेरी सेहत अच्छी होती गई। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो कहा, जाओ अब जो तुम्हें करना है करो, यकीनन तुम्हारे जिस्म के अंदर अब कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे जबान में, तुम्हारे मुंह में अब थूक भी बन रहा है, तुम्हारा खाना भी हजम हो रहा है और तुम अच्छे से हो भी रहे हो। दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने खुदा की माने, दूसरे की न माने, यकीनन हम यहाँ कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हज़रात, मैं आपको पैगाम ये देना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जिन चीज़ों को फर्ज किया है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे अदा करें। कोशिश अगर नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा परवरदिगार जरूर मदद फरमाएगा। खुद कुरान फरमाता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम कोशिश करो। यही तो वजह है कि परवरदिगार आलम का हमारे ऊपर उलमा ये बयान करते हैं, तुम नमाज पढ़ो, अगर तुम्हें मर्द लायक है, तुम अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। कहने का मकसद ये है, लेट कर पढ़ोगे या बैठ कर पढ़ोगे। हाजी साहब अभी मुझसे कह रहे थे, तकरीर हो रही थी मौलाना शकील की, और हाजी साहब मुझे मसला पूछ रहे थे, कभी कभी मेरी पेशानी जब सजदे में जाता हूँ, पेशानी नहीं टिक पाती। दोस्तों याद रखिए, ये इंसान है,
اس 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے پھر بھی نماز کی پابندی کرتی ہیں. اگر کسی وجہ سے ان کا کبھی پیشانی نہ لگے تو میں بتا دوں ان کی نماز کو خدا ضرور قبول کرے گا. لا الہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب خدا کے طرف سے علماء بیان کرتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، یہیں سے آپ محسوس کریں میرا پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے اپنے بندوں کے لیے. دوستو یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ محسوس کریں ایک خدا اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کا دور ہوا تھا. اب دور مت جائیے، معمول ممبر عالم صاحب ہے کھڑے ہوئے، ان کے حریف، ان کے مخالف اور بھی لوگ ہوئے کھڑے. یہی ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوا اور حالات دیکھا اور دیکھ کر وہ بیٹھ گیا، سمجھ گیا کہ مجھ کو ووٹ نہیں آیا ہے، ہم نہیں جیت رہے. سمجھ گیا وہ ووٹ ہم کو نہیں ملا ہے، نہیں جیت رہے. گھر میں آ کے سو گیا. ادھر گنتی ہوئی، گنتی ہونے کے بعد اعلان ہوا اسی کے بارے میں کہ اتنے ووٹ سے یہ جیت گیا. آپ سوچئے اس کے دل میں کتنی خوشی ہو. سوچئے ذرا سا، جس کو خود گمان ہو کہ ہم نہیں جیت پائیں گے لیکن نتیجہ نکل گیا کہ تم جیت گئے. ایک بچہ کبھی نہیں پڑھا، خالی بس گیم کھیلتا رہا، خالی گیم. میٹرک کا امتحان ہوا، کچھ نہیں لکھا. کبھی کبھی لک کام کر دیتا ہے، نصیب. جب رزلٹ ہوا تو معلوم ہوا کہ ضلع ٹاپر. کتنی خوشی ہوگی اس کو. وہ پب جی کھیلتا رہا اور رزلٹ آیا ضلع ٹاپر. کتنی خوشی ہوگی. علماء یہ بیان کرتے ہیں اس خوشی کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے ہزاروں گنا درجہ خدا کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. ایک بندہ جب خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اس خوشی سے ہزاروں درجہ گنا میرے خدا کو خوشی ہوتی ہے. بندے فرشتے سے خدا کہتا ہے فرشتوں دیکھ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، میرا خوف کتنا اس کے دل میں. محسوس کرو جس کے بارے میں خود خدا کہے کہ میرا بندہ کتنا خیال کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوں. یاد رکھیے اس بندے کا کیا کہنا. حضرات اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اوامر و نواہی پر عمل کریں. خدا کا جو حکم ہم پر ہے ہم ان کو ان کی وقتوں پہ ادا کریں، جس سے منع کیا ہے ہم اسے رک جائیں. یقیناً یہ میری کامیابی ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ چھوٹی سی میلاد ہے، کھانے پینے کا بھی نظم ہے. اور مولانا مستحسن صاحب اگر چاہیں تو میرے خیال سے وہ کافی ہو گیا. بس ان چند باتوں کے ساتھ آج کے اس بزمہ کا ختم کیا جاتا ہے. آئیے ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں، سلام کرتے ہیں.